So in today's class, we are going to discuss mole concept related numericals, how to solve these numericals, mole concept related numericals, especially simple numericals. Okay, class 9 level में जो simple numericals so that we are going to discuss today. So for that, आपका basic थोड़ा clear होना चाहिए about that numericals. So I am giving you idea of that relation. न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिएगा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोल concept for atoms of elements. तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे एटॉम्स के लिए, नॉट फॉर मॉलिक्यूल्स. सो द रिलेशन बिटवीन मोल, मास and number of atoms. The relation between mole, mass and number of atoms. If I write 1 mole atom of an element, तो उसका मास कितना होता है? If I ask you, उसका मास कितना होता है? 1 mole of an element, what will be its mass? Good. The Nabaruna gave the answer here. 1 mole atom of an element, mass will be equals to gram atomic mass. And if I ask you 1 mole atom of an element, mass will be equals to gram atomic mass, number of atoms कितना होगा? 1 mole में number of atoms कितना होगा? If I ask you, so all of you have given the same answer, that is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. मोल हम लोग को पता है, मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. लेकिन एलिमेंट एटॉमिक कॉन्सेप्ट में 1 मोल एटॉम ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास. It is equals to gram atomic mass. So for example, if I ask you 1 mole of calcium या फिर 1 मोल एटॉम ऑफ कैल्शियम, बात एक ही है. 1 मोल एटॉम ऑफ कैल्शियम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इन टर्म्स ऑफ मास क्या होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40. सो 1 mole of calcium, what will be the mass? Good. 40 gram of calcium. Gram atomic mass 40 gram होगा, तो 40 gram of calcium. And 40 gram of calcium में number of atoms होगा 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23. So 1 mole atom of an element is equals to gram atomic mass, that is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. 1 mole of calcium, 40 gram of calcium, that is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of calcium. Atoms of calcium. एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं for better understanding. If I write here 1 mole atom या 1 mole of magnesium, तो 1 mole of magnesium का मास क्या होगा? If I ask you, atomic mass of magnesium is 24. So it is 24 gram. It is what? 24 gram of
magnesium, and that is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of magnesium. Okay, so relation between mole, mass and number of atoms. अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा और कौन पहले आंसर देता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, how many moles are there in 12 gram of magnesium? If you can answer. Good. परिश्मिता, भूमिका, नबरुना, प्रियांश, सबने आंसर दिया है. 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में होगा हाफ मोल, क्योंकि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में 1 मोल, तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में हाफ मोल. एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं यहाँ पे, आप अगर 6.022 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना होगा? 6.022 if you divide it by 2 you will get what? 3.011. अगर आप 6.022 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? Anyone who can answer? अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1.505 आई थिंक. ओके, अगर आप 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 6.022 multiplied by 2, 12.044, and if it is multiplied by 3 then it is, if it is multiplied by 3 then it is 18.066. ओके, ये मैंने क्यों बताया है, इससे आपको बहुत जल्दी आंसर देने में हेल्प मिलेगा. अगर आपको ये पता रहता है you can answer easily some questions. So I am going to discuss mole concept for atoms of elements. I am going to discuss some numericals. और आपका अगर ये स्क्रीन पे जो कॉन्सेप्ट गिवन है अगर वो क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर पाओगे. My suggestion, just take a screenshot of this particular screen. That will be helpful later on. Now we'll discuss some numericals. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. ओके, नाउ दीज न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो यहाँ पे मोल मास का रिलेशन, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, एंड ये जितना भी न्यूमेरिकल्स है दे आर रिलेटेड टू एटॉमिक कॉन्सेप्ट और एटॉम्स. मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. सो मोल टू मास और मास टू मोल का रिलेशन, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा देर पहले मोल से मास और मास से एटॉम्स तीनों को इंटर रिलेट किया था. अब उनमें से कोई भी 2 पार्ट से आपको न्यूमेरिकल करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए उसमें से फर्स्ट 2 सिमिलर एंड नेक्स्ट 2 सिमिलर, तो मैं उन दोनों में से एक ही आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड अदर वन यू विल हैव टू आंसर योरसेल्फ. सो यहाँ मैं फर्स्ट वन डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सल्फर? व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सल्फर? सो सल्फर, if I ask you what is the gram atomic mass, I know that you will be able to answer orally also, लेकिन कैसे इसको न्यूमेरिकल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखा जाता है, जस्ट लुक एट दैट. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम. और आपको पता है कि 1 मोल का मास ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है. सो
1 mole of sulfur is equals to 32 ग्राम ऑफ सल्फर। Therefore कितना मोल्स के लिए निकालना है? Therefore 5 moles of sulfur, 5 moles of sulfur का मास होगा 5 into 32 ग्राम of sulfur. So 5 into 32 gram of sulfur. So the answer is 160 gram. 160 gram. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया है। What is the mass of 5 moles of sulfur? The answer is 160 gram. तो अब सेकेंड वन आपको खुद को डायरेक्ट आंसर देना है। What is the mass of 0.25 moles of magnesium? तो इसका सॉल्यूशन खुद को करना है। 0.25 मोल्स मेघा पॉल ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, देन भूमिका एंड परिश्मिता। 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होगा? 24 ग्राम। तो 0.25 मोल्स का मास कितना होगा? द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 6 ग्राम। इसको आप अपने आप सॉल्व करना, एक का मेथड मैंने समझा दिया है। सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 और फोर्थ आपको खुद को करना है। मैं नंबर 3 अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हैव यू अंडरस्टूड नंबर 1 ऑल ऑफ यू? कैसे करना है मोल और मास का रिलेशनशिप? हैव यू अंडरस्टूड दैट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन, मोल और मास का रिलेशन। पहला क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन था, मास निकालना था, और थर्ड क्वेश्चन में आपको मास गिवन है और मोल्स पूछा जा रहा है, मास से मोल्स मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का केस में हम लोग जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्या है? इट इज 24 ग्राम। एंड हम लोग को पूछा गया 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितना मोल्स। So we can write a statement 24 gram of magnesium equals to 1 mole of magnesium. 24 gram of magnesium equals to 1 mole of magnesium. तो कैलकुलेशन कितना में करना है आपको? कैलकुलेशन आपको कितना में करना है? कैलकुलेशन आपको 96 ग्राम में। So 96 gram of magnesium equals to 1/24 into 96 moles of magnesium. So the answer will be, if I ask you what should be the answer here is, anyone who can guess? Priyans has given the answer and it is 4 moles. आपको मास से मोल निकालना था इसमें, 4 moles of magnesium. So अब ये 4 न्यूमेरिकल्स आपके ग्रिप में है। Have you understood? फर्स्ट में मोल से मास एंड थर्ड में मास से मोल्स। हैव यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन मेथड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? इफ यू आंसर इन द चैट बॉक्स देन आई विल बी कंफर्म। मेघा पॉल इज गिविंग नंबर 4। ओके, 4 का आंसर दे रही है, नो प्रॉब्लम, बट आंसर फॉर नंबर आई हैव टू आस्क क्वेश्चन। नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 8 ग्राम ऑफ सल्फर? इफ आई आस्क यू क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर अगर आपको देना है, 8 ग्राम ऑफ सल्फर में कितना मोल्स? 8 gram of sulfur, 32 gram of sulfur, 1 mole. So 8 gram of sulfur में how many moles? And the answer for number 4, number 4 का आंसर है 0.25 moles. 0.25 moles. Okay, so I hope you have understood this first part, relationship जो था मोल और मास के बीच में। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसमें मोल से एटॉम्स और एटॉम से मोल, मास का कोई काम नहीं है।
ग्राम एटॉमिक मास गिवन भी नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटॉम्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो आप तो डायरेक्ट जानते हो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल में 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम या 1 मोल एटॉम मोर प्रॉपर्ली है, लेकिन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बोलने से आपको ये समझना होगा दैट 1 मोल एटॉम ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में नंबर ऑफ एटॉम्स कितना 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स। आप स्टेटमेंट मैंने तो इक्वल लिखा है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम था। You can also write like this: 1 mole of magnesium contains 0.6.022 into 10 to the power 23 atoms। तो आपको कितना मोल में निकालना है 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में कितना एटॉम्स होगा 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms। Okay, if you multiply you will get 3.011 into 10 to the power 23 atoms। Okay, so आपको अगर पूछा जाए 0.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में कितना एटॉम्स, आंसर 3.0। तो मैंने आपको बोला था 2 से डिवाइड करना। 0.5 मींस व्हाट 1/2, तो 6.022 को आपको 2 से डिवाइड करना था, तो यू विल गेट व्हाट 3.011, यू विल गेट 3.011। सो नंबर 2 का आंसर कौन बोल रहा है, नंबर 2 का आंसर, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई फॉर नंबर 2। नंबर 2 का आंसर कौन देना चाहते हैं, आंसर फॉर नंबर 2 एनीवन हु कैन। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास का जरूरत नहीं है। आपको पूछा जा रहा है 5 मोल्स में कितना एटॉम्स है पोटेशियम का, 5 मोल्स। नबरुना हैज गिवन द आंसर 5 मोल्स। 5 से इंटू करना सिंपल है। 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23 होता है, तो 5 मोल्स में 5 into 6.022 into 10 to the power 23, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 30.11 into 10 to the power 23। ये आंसर होगा 30.11। ये आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, नंबर 2 का आंसर 30.11 into 10 to the power 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यू विल गेट व्हाट 30.11। सो इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने मोल से नंबर ऑफ एटॉम्स कैलकुलेट किया। अगर मैं नंबर 3 पे आता हूं, नंबर 3, इस बार नंबर ऑफ एटॉम्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो कैल्शियम का केस, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.011 into 10 to the power 20 एटॉम्स ऑफ कैल्शियम। सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स ऑफ कैल्शियम कितना मोल होगा 1 मोल। ओके, पहले हम लोगों ने मोल लेफ्ट में लिखा था, इस बार मोल राइट में लिखा, वो फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो हम लोग को कैलकुलेशन किस में करना है, देयरफॉर 3.011 into 10 to the power 20, 10 to the power 20। क्वेश्चन ऑलवेज अच्छा से देखना, एटॉम्स ऑफ कैल्शियम, इसमें कितना मोल है वो जानना हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे 1/6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23 atoms, sorry, moles। Okay, so 3.011 into 10 to the power 20, I have made one mistake here again, इसलिए क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखना है। ये 3.011 into 10 to the power 20 होगा इधर, और हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ देखोगे कि 3.011 ट्वाइस 6.022 होता है, और यहाँ पे 10 to the power 20 है, 10 to the power 23 है यहाँ पे, तो 10 to the power 3 बचेगा। सो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 1/2 into 10 to the power -3। आपको किस तरह कैलकुलेशन करने से इजी लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको 0.5 into 10 to the power -3, या फिर इसको 1/1000 भी लिख लो अगर आपको डेसिमल में कैसे करना है। किसी किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट यहाँ कन्वर्शन समझ में आ जाएगा। सो नाउ द 0 point it is, जस्ट वेट, यहाँ पे आपको आंसर जो मिल रहा है
The answer here is 0.0003 0 जो यहाँ था 1000 का वो वहाँ ट्रांसफर कर दिया 0005 moles. Okay, so have you understood the calculation here? 1 by 2 into 10 to the power 3 था, 1 by 2000 आ गया, तो 0.0005 आएगा, 0005 moles. Have you done the calculation yourself? एक बार करके देख लो आप लोग. Just do the calculation so that you will feel comfortable. जो पावर का न्यूमेरिकल आते ही प्रॉब्लम होता है बहुत स्टूडेंट को. Now next one. अब ये जो है सेम पैटर्न में आपको सॉल्व करना है, सेम पैटर्न में आपको खुद को सॉल्व करना है. नंबर 4, नंबर 3 मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया. नंबर 4 यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. Good. Nabaruna has given the answer, and answer here for number 4 is 20 moles. आंसर 20 मोल्स आना चाहिए आपका. तो अब तक हम लोगों ने 8 न्यूमेरिकल डिस्कस किया है. उसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मोल से मास और मास से मोल्स का कैलकुलेशन, सेकंड में मोल से एटॉम्स और एटॉम से मोल का कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया. एंड नाउ मास टू एटॉम्स एंड एटॉम्स टू मास calculation we'll discuss. Okay, so have you understood till question number 8? Numbering में 8 नहीं है, लेकिन total question we have discussed 8. Have you understood till 8? Okay, अब हम लोग next part में जाते हैं. Now mass and atoms. मास एंड एटॉम, अगर वो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट आप देखोगे, ग्राम एटॉमिक मास में कितना एटॉम्स होता है? 6.022 into 10 to the power 23. किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटॉम्स कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23. सो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट वन, हाउ मेनी एटॉम्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. तो आपको तो ग्राम एटॉमिक मास में कितना एटॉम्स होता पता ही है. तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास है 24 ग्राम. 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में एटॉम्स कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स. ओके, इतना एटॉम्स होगा. कितना एटॉम्स? 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स होगा. 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में एटॉम्स 6.022 into 10 to the power 23. तो आपको पूछा कितना में? 12 ग्राम. Therefore 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में एटॉम्स कितना होगा? So it will be 6.022 into 10 to the power 23 divided by 24 into 12 एटॉम्स. ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप यहाँ पे 12 ट्वाइस यहाँ पे, और 6.022 को 2 से जब डिवाइड करोगे you will get 3.011. So you will get 3.011 into 10 to the power 23 atoms. Okay, so आपको ग्राम एटॉमिक मास पता है, और ग्राम एटॉमिक मास से you can easily calculate what number of atoms. Then this one you try yourself. How many atoms are there in 96 gram of sulfur? How many atoms are there in 96 gram of sulfur? Bhumika has given the answer, and the answer is also correct answer. 96 ग्राम ऑफ सल्फर में आप जब कैलकुलेट करोगे आप लोगों को मिलेगा 18.066. ओके, 32 का 3 टाइम्स है 96, तो एटॉम्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा. 3 से इंटू करने से 6.022 को आएगा 18.066 इंटू 10 to the power 23 atoms. 10 to the power 23 atoms. Okay, so Megha Paul, your answer is also correct. नंबर 2 के लिए. सो ये 2 हो गए हम लोगों का. एंड नाउ
आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस थर्ड क्वेश्चन जहां पे मास कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटॉम से। आपको नंबर ऑफ एटॉम गिवन है, आप तो जानते हो कि अगर नंबर ऑफ एटॉम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा तो उसका मास ऑलवेज ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, सो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स का मास कितना, ग्राम एटॉमिक मास। तो सोडियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ स्टेटमेंट कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स of sodium is equals to, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, so it is equals to 23 ग्राम ऑफ सोडियम, equals to 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको कैलकुलेशन कितना में करना है, therefore 3.011 into 10 to the power 23 atoms of sodium। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा स्पेस का मैं नीचे कर रहा हूं मैं यहाँ पे, you will get 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23। okay, so अब अगर हम जब कैलकुलेशन करेगा, when we do the calculation part, तो आप यहाँ देख सकते हो 3.011 ये ट्वाइस हो गया, 10 टू द पावर 23 कैंसिल हो गया, और 23 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग विल गेट व्हाट 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आपको पता चल गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स ऑफ सोडियम में कितना ग्राम ऑफ सोडियम। इसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आप थोड़ा दिन बाद ऑरली कर लोगे, इतना इजी है ये, ऑरल कैलकुलेशन भी पॉसिबल है इसमें, नो प्रॉब्लम। और नंबर 4 का आंसर आपको खुद को देना है। नंबर 4 क्वेश्चन हियर, नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20। फोकस करना, 10 का पावर 20 है, सो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 20 एटॉम्स ऑफ सल्फर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट इज द मास ऑफ 12.044 into 10 to the power 20, it is 10 to the power 20, yeah? So इसके बारे में सोचो, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला मुझे। इस 10 का पावर 20 कैलकुलेशन पे फोकस करो, जिस मेथड से मैंने कैलकुलेशन किया आप उस मेथड को फॉलो करो। Nabaruna got the answer। Bhumika also got the answer and it is 0.064 gram। 0.064 gram आना चाहिए when you are doing the calculation। So now I discuss total number of question। डिस्कशन हम लोग का 12 क्वेश्चन का हो गया और सभी का आंसर भी मैंने डिस्कस किया है, एक मैंने सॉल्व किया, एक आप लोगों ने किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। भूमिका also gave the same answer। ओके, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जिसको मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स आता है उसी के पास कॉन्फिडेंस होगा। ओके, और आप देखना आपको जिस भी मेथड से सिखाया जाएगा स्कूल ये सब में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस टॉपिक में सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्शन जैसे किया है टॉपिक वाइज, न्यूमेरिकल को भी डिफरेंशिएट किया है, एंड नाउ आपको प्रॉब्लम भी होगा तो ये वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर किया है। सो आप जब इसको बार बार देखोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है, क्लास 9 रिलेटेड, दैट वी विल डिस्कस। सो आई एम मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। अभी तक हम लोगों ने एटॉम्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूल्स।
ओके तो पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर देता हूं आप लोगों का। मेगापॉल जब टाइम सेट होगा आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। सो मोल कॉन्सेप्ट नाउ फॉर मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट। तो अब मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूंगा एंड द रिलेशन हियर बिटवीन मोल मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। इफ आई राइट 1 mole molecule of a substance, 1 mole molecule of a substance, ये जो substance मैं बोल रहा हूं वो substance element भी हो सकता है और compound, क्योंकि molecules element का भी होता है, molecules compound का भी होता है। molecule of element like O2, N2, H2, ये सब है molecule of element, ये सब examples। molecule of compound, अगर molecule of compound का बात करता हूं मैं तो CO2, H2O, okay, NH3, these are the molecules of compound। तो दोनों के लिए ये applicable होगा। So 1 mole molecule of a substance, तो इसका मास क्या होगा कौन बताएगा मुझे? 1 mole molecule का मास, Navaruna has given the answer, it is equals to gram molecular mass, it is equals to gram molecular mass। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 6.022 into 10 to the power 23 molecules, 10 to the power 23 molecules। तो यहाँ दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, आप ये जानना ना जब ऑक्सीजन गैस का बात होगा तो O2 का ही बात होगा। ओके सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड मास इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास ध्यान देना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना है यहाँ पे। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्या आंसर होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? गुड, मॉलिक्यूलर मास। भूमिका यू आर रॉन्ग है, 16 ग्राम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। तो मॉलिक्यूल बोलने से O2, O2 होने से 2 into 16, 2 into 16 that is what, 32 gram। So 1 mole of oxygen gas is equals to 32 gram of oxygen gas and that is equals to, अगर आपको पूछा जाए कितना मॉलिक्यूल्स, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? इफ आई आस्क यू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा? आंसर इज 6.022 into 10 to the power 23 molecules। Molecules। I am taking another example. 1 mole of carbon dioxide, 1 mole of carbon dioxide gas, carbon dioxide gas, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो आप मुझे बता पाओगे इसका मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास, मेगा पॉल आपका आंसर रॉन्ग है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास, इफ आई आस्क यू, कार्बन एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16 और आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। सो नबरुना हैज गिवन द आंसर एंड इट इज, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 to the power 23 molecules, 10 to the power 23 molecules। ओके
अब आपको मैं अगर कुछ क्वेश्चन पूछूं, उसका डायरेक्ट आंसर देने का कैपेसिटी आपको डेवलप करना होगा. इफ आई आस्क यू 64 gram of oxygen gas, how many moles? 64 gram of oxygen gas, how many moles are there? Okay, Bhumika has given the answer. Correct answer. Parishmita. 64 ग्राम में मोल्स पूछा है प्रियांश, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा. मोल्स कितना होगा? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स होता है 1, तो 64 में कितना होगा? 2 मोल्स, लाइक दैट, 2 मोल्स. नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल वन. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? How many molecules are there in 88 gram of carbon dioxide, if I ask you? 88 gram of carbon dioxide. Parishmita, your answer is incomplete. 88 gram of carbon dioxide में number of molecules. Bhumika, your answer is complete. 12.044 into 10 to the power 23. 12.044 into 10 to the power 23. मेगा पॉल, आपका आंसर एकदम डिफरेंट है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा था. 44 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स है? 44 ग्राम में मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10 to the power 23. तो 88 ग्राम में उसका डबल हो जाएगा. डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 6.022 into 10 to the power 23 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, you will get what? 12.044 into 10 to the power 23. So I hope you've understood this particular part so that we can solve numerical. सबको समझ में आ गया? Any problem, any issue in understanding this part? जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो और भी क्लियर होगा ये पोर्शन. पहले एटॉमिक था और अब मॉलिक्यूलर है. ओके, पहले एटॉमिक था और अब मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है. तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे एंड देयर सॉल्यूशन. और यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है. मोल से मास, मास से मोल. पहला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं. जब भी मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट होने से आप जो भी कंपाउंड यहाँ दिया हुआ होगा, अगर क्वेश्चन मास से रिलेटेड है तो आपका पहला काम होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन. सो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा. व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास पूछा गया है. तो पहला स्टेप ही मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आप कंप्लीटली लिखना, एब्रिविएशंस यूज मत करना. ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is 44 gram. आप कैलकुलेशन करके दिखाना ये. And I already explained you how to calculate gram molecular mass or molecular mass. So 44 gram. So gram molecular mass कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम. तो अगर मैं पूछूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो. इट इज 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैं अगर पूछता हूं आपको 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा, तो 5 into that, 5 into 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो द आंसर हियर, आंसर होगा 220 ग्राम. कितना होगा? 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पहले जैसे न्यूमेरिकल किया था सेम मेथड. पहले हम लोग एटॉमिक मास यूज करता था, बस डिफरेंस ये हो गया. अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास यूज करेंगे. और आपको फॉर्मूला भी पता होना पड़ेगा. ऑक्सीजन गैस बोलने से O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरीन गैस बोलने से Cl2, like that. So first one I have discussed. Now second one you have to think yourself. Question है, what is the mass of 0.25 moles of oxygen gas है. ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होता है, बस ये याद रखना. मॉलिक्यूलर बात हो रहा है. So what is the mass of 0.25 moles of oxygen gas? Bhumika has given the answer, correct answer. बाकी लोग भी सोचो. .25 moles of oxygen gas. परिष्मिता, ऑक्सीजन गैस इज O2. तो मैंने आपको बोला था जब भी
क्वेश्चन में मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका पहला स्टेप होना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस O2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या होगा? वो होगा 32। तो 0.25 मोल्स का कैलकुलेशन करने से आपका आंसर आना चाहिए 8 ग्राम। आंसर कितना आना चाहिए इसका? 8 ग्राम आंसर आना चाहिए। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Parishmita, have you understood now? Okay, now question number 3 I will discuss. अभी पहला 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने मास कैलकुलेशन का बात किया और गिवन था नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस बार मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का बात है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पहले से जानते हैं, इट इज 44 ग्राम। आप कैलकुलेशन करके दिखाना ये पोर्शन में। और हम लोग को ये पता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स कितना मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपको कैलकुलेशन कितना में करना है? 11 ग्राम। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। सो 1/44 into 11 moles of carbon dioxide. So you will get 1/4 moles of carbon dioxide, or we can say 0.25 moles of carbon dioxide. 0.25 moles of carbon dioxide. Similarly, number 4 में पूछा how many moles are there in 71 ग्राम of chlorine gas. क्लोरीन गैस Cl2 होता है, बस मैं आपको इतना हेल्प कर दिया। क्लोरीन गैस Cl2 होता है, तो आपको बताना है नंबर 4 का आंसर। 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस में कितना मोल्स? 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस में कितना मोल्स? परिष्मिता, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेशन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द वीडियो लिंक, आपने देखा नहीं अभी तक, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही हो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर कैलकुलेशन करना हम लोगों को, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखना है, उसमें 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 1 into एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना? 12। ऑक्सीजन 2 है तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। और आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या? ग्राम में। आप कैलकुलेट कर रहे हो ग्राम में, सो इसको पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर हियर 44 ग्राम। मैं डायरेक्टली क्या, आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स वगैरह दिखाना वहां पे। सो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे नंबर 4। नंबर 4 का आंसर मैंने पूछा था। नंबर 4 प्रियांश, नबरुना, मेघा का आंसर करेक्ट है। आंसर इज 1 मोल। आंसर यहाँ पे 1 मोल आएगा। कैलकुलेशन ही नहीं करना आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करने से 71 आएगा, तो 71 ग्राम में डायरेक्टली आप लिख सकते हो 71 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 मोल, बिकॉज ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल होता है। आप चाहे रीजनिंग में लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल। नाउ द सेकेंड पार्ट, यहाँ मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मोल, तो यहाँ मास का बात नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, जस्ट वेट। आपको यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? फर्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको कितना में पूछा है? 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 5 moles of carbon dioxide, so 5 into 6.022 into 10 to the power 23
molecules. So you will get what? क्या आंसर मिलेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 से मल्टीप्लाई 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सॉरी 0.5 था, मैंने 5 से कैलकुलेशन किया है. 0.5 से कैलकुलेशन करना है. तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. क्वेश्चन था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 0.5 मोल यानी हाफ मोल. व्हाट शुड बी द आंसर इफ आई आस्क यू? If you multiply, you will get 3.011 into 10 to the power 23 molecules. Okay, 3.011 into 10 to the power 23 molecules. Have you understood, all of you? Have you understood second part ka first one? Okay, now second one, second question. सेकेंड पार्ट का अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, ये आपको खुद को करना है. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. 5 मोल्स में कैलकुलेशन करना है आपको, और 5 मोल्स में कैलकुलेशन करना मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है. 6.022 into 10 to the power 23 and you will get the answer. Bhumika has given the answer. Bhumika, Megha, Priyans. And answer for this particular question इसका 30. क्या आंसर होना चाहिए? 30.11 into 10 to the power 23 molecules. Into 10 to the power 23 molecules. Now, इसका नंबर 3. फर्स्ट 2 में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया मॉलिक्यूल्स किससे? मोल से. और नेक्स्ट 2 में आपको कैलकुलेशन करना है मोल्स गिवन है मॉलिक्यूल्स. तो गिवन है मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम लोग थर्ड का बात करें यहाँ पे, how many moles are there in 3.011 into 10 to the power 20 molecules of ammonia. तो हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ammonia is equals to कितना मोल? It is equals to 1 mole. मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है. आपको कितना में कैलकुलेशन करना है? आपको कैलकुलेशन करना 3.011 into 10 to the power 20 molecules of ammonia. Molecules of ammonia. तो आपको इसमें कैलकुलेशन करना है. तो ये आएगा 1 by 6.022 into 10 to the power 23 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 20 molecules of ammonia. अब इसका कैलकुलेशन पार्ट है. अब इसका कैलकुलेशन पार्ट आप देखो, बहुत इजी है. 3.011 ये ट्वाइस, और ये 10 to the power 20 है. तो यहाँ पे 23 था, इसलिए 10 to the power 3 बच गया, यानी आपको मिला 1 by 2000. 1 by 2000. तो आंसर क्या होना चाहिए? इतना मॉलिक्यूल्स होगा. If you do the calculation 1 by 2000, what answer you should get? What answer you should get? Similar calculation हम लोग पहले भी किया था एटॉमिक कॉन्सेप्ट में. अभी तक किसी से आंसर नहीं मिला. ओके, परिष्मिता का आंसर आ गया, लेकिन आंसर मुझे करेक्ट नहीं लग रहा. परिष्मिता, एनी अदर स्टूडेंट? Any other? Good. Nabaruna, she has given the answer. If you divide, you will get 0.0005 molecules. Okay, these many molecules. तो ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, और इसी पैटर्न का दूसरा आप लोगों को खुद को करना है. ओके, क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.044 into 10 to the power 24. पावर पे ध्यान देना. 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. कितना मोल्स है वो कैलकुलेट करना है इतना मॉलिक्यूल्स में.
कौन आंसर दे रहा है? ओके, नबरुणा, भूमिका, आप आंसर आ चुका है। कितना मोल्स? You will have to calculate the number of moles. Parishmita, your answer is wrong. And Parishmita is suffering, today suffering, she is suffering some problem. Only one reason, you have not seen that particular video. Okay, जो मैंने पहले का क्लास में भेजा था। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो आज आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। यू आर वेरी गुड इन कैलकुलेशन, बट आज आपका आंसर बहुत बार रॉन्ग आ चुका है। एंड हियर आंसर इज, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप लोगों को खुद को ही कैलकुलेशन करना है। 20 मोल्स, 20 मोल्स। ओके, आंसर इज 20 मोल्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्ट कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में मोल से मास, मास टू मोल। सेकेंड पार्ट में मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू मोल। एंड नाउ थर्ड एंड फाइनल पार्ट, मास से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? अगर मैं आपको पूछूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, इफ आई आस्क यू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? Good, Nabaruna, she has given the answer. ग्राम मोलिकुलर मास में मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23। ये याद रखना। भूमिका, योर आंसर वाज रॉन्ग। 6.022 into 10 to the power 23। तो आपको यहाँ पे पहला दो क्वेश्चन में मास गिवन है और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो एक मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को बोला था व्हेनेवर मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मास, यू शुड हैव टू कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 44 ग्राम। तो आपको पूछा गया 22 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स, तो आपको तो 44 ग्राम में पता ही है। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो आपको कैलकुलेशन 22 ग्राम में करना है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 into 10 to the power 23 divided by 44 into 22 molecules, into 22 molecules। जब आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे तो 22 ये 2 टाइम्स, फिर यहाँ कैंसलेशन करोगे 3.011, so you will get what? 3.011 into 10 to the power 23, 3.011 into 10 to the power 23 molecules। So first one has been solved and second one इसका आंसर का मैं आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। वापस मैं बोलता हूँ, ऑक्सीजन गैस यानी O2 और O2 का GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास पहले कैलकुलेट कर लो आप लोग। ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से आएगा 32 ग्राम। सो आपको अब पता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स कितना? 6.022 into 10 to the power 23 और आपको 128 में पूछा गया है, 128 में पूछा गया है। एंड द आंसर शुड बी 24.088 into 10 to the power 23, 24.088 into 10 to the power 23, okay, molecules। 24.088 into 10 to the power 23 molecules। I hope you have understood। तो पहला दो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास, और अब नेक्स्ट टू में आपको मास कैलकुलेट करना है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। आपको मास कैलकुलेट करना है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। सो एक नंबर 3 में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। नंबर 3, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 into 10 to the power 23 molecules of ammonia gas? ओके, अमोनिया गैस।
तो यहाँ पे मास का बात है। एमोनिया गैस का फॉर्मूला आपको पता होना पड़ेगा, इट इज NH3। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया गैस कौन बताएगा मुझे? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सो व्हाट शुड बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया? व्हाट शुड बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया? प्रियांश, आपका आंसर रॉन्ग है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया, इफ आई आस्क यू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मेगापॉल। परिष्मिता, you are again wrong. Ammonia NH3 N, नाइट्रोजन का 14 है, 14, हाइड्रोजन का 1। Nabaruna, your answer is also wrong. Nitrogen is 14 and Priyans, your answer is correct, 17 ग्राम। कैसे 17 ग्राम आया? देखो एमोनिया है, एमोनिया होने से N1 है तो 1 into 14 प्लस 1 into 14 प्लस 3 into 1, ग्राम में एक्सप्रेस करना आपको, you will get what? 17। So ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एमोनिया 17 ग्राम। तो आपको तो पता है 17 ग्राम जो है उसका ग्राम मोलिकुलर मास है, पता चल गया। और आपको 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेशन करना है। तो 6 पॉइंट, यू ऑलरेडी नो व्हाट, आपको यहाँ पे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास पता है कितना, थोड़ा स्पेस कम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया इज इक्वल्स टू 17 ग्राम ऑफ एमोनिया। तो आपको कैलकुलेशन कितना में करना है? आपको कैलकुलेशन कितना के लिए करना है? 3.011 into 10 to the power, therefore 3.011 into 10 to the power 23 molecules of ammonia, molecules of ammonia का मास कैलकुलेशन करना है। तो ये होगा 17 by 6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे, 23 10 to the power 23 कैंसिल हो गया, 3.011 ये 2 टाइम्स, और 17 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, you will get 8.5। You will get what? 8.5। So यहाँ आपको आंसर जो मिल रहा है वो आंसर है 8.5 ग्राम of ammonia, 8.5 gram of ammonia। Okay, so have you understood this particular solution? Number 3 आप लोगों को समझ में आ गया? Number 3, have you understood, all of you? Okay, so आज का क्लास में हम लोगों ने जितना न्यूमेरिकल डिस्कस किया वो मैक्सिमम है अब तक के लिए, जितना भी मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ओके, ग्रेविटेशन, और इसमें आप लोगों का पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इन्वॉल्व इन द चैट बॉक्स, अपने आंसर भी दे रहे हो आप लोग, और इसीलिए आज थोड़ा फास्ट हम लोग हो पाए हैं। So what is the mass of, next question आपके लिए, what is the mass of 12.044 into 10 to the power 20 है, 10 to the power 20 molecules of nitrogen gas N2 है। नाइट्रोजन गैस N2 और N2 यानी उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है तो ये 28 ग्राम होगा, बस ये सब ध्यान रखना आप लोग। What is the mass of 12.044 into 10 to the power 20? 12.044 into 10 to the power 20 molecules of nitrogen gas. So answer यहाँ आ चुका है, Nabaruna and Bhumika has given the answer. Others you should try, तो आंसर देने का कोशिश करो। इसमें कैलकुलेशन आप देखो, इसी पैटर्न में कैलकुलेशन करना आपको। पैटर्न तो यहाँ आपके पास है, जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो यहाँ पे आपने लिखा 28 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23, और आपको कैलकुलेशन कितना के लिए करना है? 12.044 into 10 to the power 20।
तो आप जब कैलकुलेशन यहाँ करोगे तो यहाँ 10 का पावर 3 यानी 1000 यहाँ पे रह जाएगा, और ये ट्वाइस, तो 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000, 28 इंटू 2 होता है 56, एंड 56 डिवाइडेड बाई 1000 यू विल गेट क्या आंसर आएगा आपका? लास्ट क्वेश्चन का आंसर नबरुना भूमिका का आ चुका है, बाकी सब लोगों ने अभी तक आंसर दिया नहीं है. परिश्मिता got the answer, and answer here is 0.056 ग्राम ऑफ एमोनिया, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, सॉरी, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस. सो आज का क्लास अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास समझने का पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस थोड़ा हायर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स विल डिस्कस. So class is over for today.